All right, let's start. Probability वाला चैप्टर में आपका दो तीन सेक्शन दिया हुआ है. फर्स्ट सेक्शन दे आर डिस्कसिंग probability. In the second section they start discussing expected value, covariance and all that. And in the last section they do the Bayes theorem and the labeling and permutation combination and all. I'll do the first and the last together. बीच वाला के साथ मेरा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा, तो बीच वाला सेक्शन मैं अलग से कराऊंगा. ठीक है. फर्स्ट सेक्शन, when we start about probability, when we start talking about probability, firstly they've discussed एकदम basic theoretical terms. आज प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? एनीथिंग, उसका किसी भी चीज का होने का, इवेंट का होने का चांसेस क्या है फ्यूचर में. दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी मीन्स. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एंड अ परम्यूटेशन एंड अ कॉम्बिनेशन, राइट एवरीबडी? You understand the basic idea of a probability, permutation or combination, right? Event, outcome. Event मतलब dice फेंका, that is an event. Outcome मतलब head आया, tail आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया on a dice or a coin. So that is what an event, outcome. When you talk about mutually exclusive events, either you get a head or you get a tail. Can you get both of them together? Not possible. So they are mutually exclusive. आपस में exclusive. दोनों में से एक ही हो सकता है. When you talk about exhaustive events, exhaustive events मतलब ये मतलब या तो head होगा या tail होगा. They are exhaustive. उसके अलावा कोई option बचा नहीं है. So when you're talking about exhaustive events, they are like these are all the options available. इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता. When you talk about sure events, मतलब ये होगा ही होगा. When you talk about an impossible event, this is not possible. When you talk about independent event, like say for example I toss a coin and at the same time I throw a dice, what comes on the coin and what's there on the dice it's independent of each other. One does not depend on the other. Me studying and therefore clearing the exam, they are two dependent events. Study करोगे, clear करोगे. Study नहीं करोगे, clear नहीं करोगे. So that is not an independent event. But when you toss a coin and you throw a dice, it's independent events. Everybody following? So ये तो basic terms हो गया, ये आप लोग को already आता है. And इसके ऊपर the testability is very low. What we need is the calculations, the formula, the logic, the understanding. I'll give you a few formulas. You take this down and that's all you need to know. So when you talk about probability should be ranging, probability of any value x should be ranging between 0 and 1. मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इक्वल टू लगा करके लिखने का, बट बुक्स में इक्वल टू नहीं रहता है. 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 मतलब 100% श्योर शॉर्ट इवेंट. So obviously when you know that something does not happen, you don't need to take it into probability. And when you know that something has to happen, then you again don't need to take the probability. Probability तो वहाँ लेते हैं ना जहाँ पर अपने को डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, कितना चांस है कोई चीज के होने का. What is the probability of something happening? Following everybody? दूसरा चीज, your summation of all the probabilities should be equal to 1. अगर आप exhaustive events ले लेते हो, तो summation of all the possible outcomes का probability should be summing up to 1, right? These are the two conditions required. Say for example, I give you a probability function. Let's say I give you, ये वाला part मत लिखना, x is equal to either 1, 2, 3, 4. And I tell you, probability of any value being x being x, is equal to let's say 1 upon x. मतलब 1 का probability कितना होगा? 1. 2 का probability कितना? हाफ. अब एक बात बताओ, for this to be a valid probability function, don't you think कि सारे values को डालेंगे तो हर एक आंसर less than equal between 0 and 1 आना चाहिए, and total of all these values को लेकर के जो probabilities निकालेंगे that should be equal to 1. and अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब this probability function is faulty, this probability function is incorrect. That is how I will see ना, that अगर मैं जो भी x's का value डालूंगा, every single answer of the probability should be between 0 and 1, because the probability you cannot have more than, वो ना बोलने का बात है 120% हम आपको बोल रहे हैं, that's rubbish. It has to be between 0 and 1, and the summation of all those needs to be equal to 1. That is fine everybody. So this function won't work because 1 plus half हो जाएगा ना. 1 by 1 is 1 plus half, your probability increases, your total probability is more than 1. That is not possible. So this is an incorrect function. But the moment I do this, it's a half plus a 1/3 plus a 1/4. यहाँ तक individual it's working, but total 1 है कि नहीं वो check करना पड़ेगा. तो अगर total 1 होगा तो अपने बोलेंगे कि हाँ it's a valid probability function. And if the total is not equal to 1, we say it is not a valid probability function, it's not a correct function, truly defined function. This is okay. ये दो फॉर्मूला देने का रीजन यही था कि इस तरीके का एक आधा छोटा सम्स है. Then what you need to know is probability of A union B is equal to
राइट, सिंपल. पी ए यूनियन बी इज ए एंड बी दोनों का एक साथ होने का प्रॉबिलिटी. तो ए होने का प्रॉबिलिटी प्लस बी होने का प्रॉबिलिटी, बट ए और बी जब एक साथ होते हैं तो वो वाला प्रॉबिलिटी डबल काउंट हो गया, राइट. तो उसको अपने को एलिमिनेट करना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी. फाइन. So this is PA plus PB minus PA intersection B is your PA union B, and PA intersection B is going to be equal to PA into PB if PA and B are independent events. How do we prove this? Say for example, you're tossing a coin, head or tail, दो option. When you're throwing a dice 1 to 6, there are 6 options. Total number of options कितना हुआ? 12 ना? Head with 1 2 3 4 5 6 and tail with 1 2 3 4 5 6. तो टोटल 12 ऑप्शन हुआ. उसमें सपोज मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा एंड 4 आएगा, दैट इज 1 आउट ऑफ 12 ऑप्शंस, राइट. सो द आंसर इज व्हाट? 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम अकरिंग टुगेदर. दैट्स हाफ इनटू 1/6 पीए इनटू पीबी इफ दे आर इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट होगा तो नहीं चलेगा ये चीज. बोलो ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच आई शुड हैव गिवन पहले, दैट इज ये तो सबसे बेसिक प्रेमाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस इज द प्रोबेबिलिटी. इतना फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? दैट्स ऑल. आई विल नॉट टीच यू अनदर फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी. बेस थ्योरम का फॉर्मूला मेरे को भी नहीं आता, ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आता है. नो अदर फॉर्मूला इज व्हाट यू नीड ओवर हियर. यहां तक ठीक है. ये वाला एक बार कॉपी कर लीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट विद द बेस थ्योरम का सम ओनली. दैट विल बी अ फुल फ्लेजेड सम एंड दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल, अनकंडीशनल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेस थ्योरम, एवरीथिंग इन दैट वन सम यू विल गेट इट. एक बार ये वाला ले लीजिए. दैट लॉजिक यू विल हैव टू नो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय सैंपल स्पेस. 0 and 1 के बीच में होगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड PA यूनियन B is PA into PA plus PB into minus PA intersection B, and that is PA into PB for independent events. Basically ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है as such. I've hardly given you anything to remember. बोलो everybody is okay till here? ठीक है. नेक्स्ट वाला सम, अभी जो सम करा रहा हूं उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बिकॉज वंस यू डू दैट यू आर थ्रू विद प्रोबेबिलिटी मोर और लेस. All right guys, you'll have to concentrate please. let's say oil price वाला ही लेते एक बार एग्जांपल. let's say we are talking about an oil price. oil price either increasing or oil price decreasing. oil price ऊपर नीचे होता है तो ONGC का जो शेयर प्राइस है वो भी ऊपर नीचे होगा. इट्स एन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का कंपनी. इफ ऑयल प्राइसेस इंक्रीज ONGC का प्राइसेस विल गो अप. इफ ऑयल प्राइस जनरली फॉल्स ONGC का शेयर प्राइस शुड बी फॉलिंग. ऑयल प्राइस के ऊपर में ONGC का शेयर प्राइस डिपेंड करता है कि ONGC के मूवमेंट पर ऑयल का प्राइस चेंज होता है. ऑयल प्राइस के ऊपर ONGC का चेंज होता है. आई कैन ऑल्सो रिलेट ONGC ऑयल प्राइसेस टू लेट्स से इंडिगो शेयर का प्राइसेस. ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, जेट फ्यूल का प्राइस गोज अप, इंडिगो का शेयर प्राइस शुड कम डाउन बिकॉज इंडिगो का फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी सीम्स लोअर. हायर ऑयल प्राइस, इंडिगो वुड बी अर्निंग लेसर इन फ्यूचर ना, बिकॉज उसका कॉस्ट फ्यूल का, फ्यूल इज अ मेजर कॉस्ट इन केस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री. सो उसका लॉस होना चाहिए ना. सो वी कैन टेक इट आइदर वेज. लेट्स टेक द इंडिगो रूट आई गेस, और ONGC लेते वो इजी रहेगा. सो अपना दो पॉसिबिलिटीज है. आइदर ऑयल प्राइस गोज अप और ऑयल प्राइस गोज डाउन. ऑयल प्राइस गोइंग अप और डाउन डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, बट ONGC का प्राइस गोइंग अप और डाउन डिपेंड्स ऑन ऑयल का प्राइस. दैट इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, जस्ट मेक इट दैट साइड. आई गिव यू टाइम टू राइट. ध्यान दीजिएगा. ऑयल प्राइस गोइंग अप और ऑयल प्राइस गोइंग डाउन. अगर ऑयल प्राइस ऊपर गया नहीं, अच्छा ऑयल प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी इज लेट्स से 60% एंड 40% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल प्राइस गोइंग डाउन. ठीक है. अभी मैं बोलता हूं कि अगर ऑयल प्राइस ऊपर गया तो ONGC का शेयर प्राइस कैन गो अप और ONGC का शेयर प्राइस कैन गो डाउन. लाइकवाइज इफ ऑयल प्राइस गोज डाउन ONGC का शेयर प्राइस माइट गो अप और ONGC का शेयर प्राइस माइट गो डाउन. कोई गारंटी थोड़ी है कि ऑयल बढ़ेगा तो ONGC बढ़ ही जाएगा. हाँ, अगर ऑयल बढ़ता है तो 80% चांस है कि ONGC का प्राइस बढ़ेगा
एंड 20% खाली चांस है कि ONGC का प्राइस गिरेगा. लेट्स से आई एम गिविंग दीज फिगर्स. अगर ऑयल नीचे गया, इफ द ऑयल प्राइस फॉल्स डाउन, इन दैट केस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से 70 में प्रॉब्लम हो जाएगा, 75% probability that ONGC will fall, and there is only a 25% probability that ONGC का share price is going to rise. Now try to understand. Oil का price, oil का movement is the dependent event or the independent event? Independent event. ऑयल ऊपर नीचे जाए वो ONGC के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ONGC का ऊपर नीचे जाना ऑयल के मूवमेंट पर डिपेंड करता है. So when I'm talking about the 60% and the 40%, they are the unconditional probability of the independent events. Correct? ये unconditional probability of independent event हो गया ना, कि आज probability of oil going up is equal to right, unconditional probability of independent events. This is fine. जब अपने 80-20, 25-75% का बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, there are 100 cases, out of 100 cases 60 केस में ऑयल का प्राइस ऊपर गया, 40 केस में ऑयल का प्राइस नीचे गया, करेक्ट? आउट ऑफ those 60 cases 80% ऑफ those cases में ऑयल बढ़ गया है, वो हो चुका है, that is a sample space now, think. ऑयल बढ़ चुका है, ऐसा हो चुका है. अब उस ऑयल बढ़ा कितने केसेस में? 60 केसेस में. Out of that 80% of those 60 cases में ONGC is going up, right? And 20% of those 60 cases में ONGC is going down. So if I take 80% of 60, that is a 48%, and 48% नहीं लिखता हूँ, एक बार let me write 48, and I take a 20% of 60, that is 12. तो out of those 60 cases जिसमें ऑयल बढ़ा है, उसमें से 80% cases में ONGC is going up and 20% cases में ONGC is going down. So ONGC goes up in 48 cases out of the 60 and 12 cases out of the 60. If oil has fallen down, that is in those 40 cases, out of those 40 cases, 25% of the cases में ONGC is going up, that is 10. And out of those 40% cases, 75% of those 40 cases में ONGC goes down, that is 30. Correct? Now, when you look at these, 80%, 20%, 25 and 75 जो है, don't you see कि 80% times ONGC goes up provided oil has gone up. It is the conditional probability of dependent event. ONGC ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा provided oil has gone up, provided oil has gone down. अगर ऑयल ऊपर गया है तो बताओ कि ONGC के ऊपर जाने का probability क्या, नीचे जाने का probability क्या. It is conditional on the fact that oil has gone up or gone down, right? So this becomes your conditional probability of the dependent event, right? When I'm talking about this one, this 48, अब एक बात बताओ, जब 60 को तुमने 80-20 रेशियो में तोड़ा है, 40% को आप broken down in 25 and 75 का रेशियो, नीचे वाला total is also 100% तो. This is also 100. I'm breaking the 60 and 40 in a particular ratio. I'm still breaking the 100%. So 48 out of 100 cases, may ONGC has gone up and oil has gone up. ONGC has gone down and oil has gone up in 12% cases. These are your joint probabilities of two things happening together. These are your joint probabilities of two things happening together. Correct? Now if I say, I'll repeat it again. Now if I say out a total of 48 and 10, there are 48 plus 10 equal to 58 out of total cases जिसमें ONGC has gone up. Am I wrong? कुछ भी हो, oil ऊपर जाए नीचे जाए भाड़ में जाए, ONGC has gone up in 58% cases. Correct? This is the unconditional probability of dependent event. And ONGC नीचे जाने का total probability कितना है?
Probability of ONGC going up is 58%. Probability of ONGC going down is 42%. This and this both. Unconditional probability of the dependent event. This was ONGC ऊपर नीचे जाना provided oil has gone up or provided oil has gone down. So when I talk about these ratios, probability of ONGC going up is equal to 58%. Correct? Correct? हाँ कि ना? That is how you write probability of ONGC going up given that oil has gone up. Probability of ONGC going down given that oil has gone up. एक और चीज के तरीके से अगर देखोगे तो 80% क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? ऑयल गोइंग अप. ऑयल गोइंग अप कितना केसेस है? 60. फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 60 केसेस में कितने केसेस में ONGC ऊपर गया? 48 ना. अब ये सब ना फालतू चीज आएगा. अब जैसे वो 48-60 का बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड इज इक्वल टू कितना? 48 कैसे आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ऑयल गोइंग अप का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. फॉर्मूला बना कि नहीं? मेरे को नहीं आता. मेरे को ऐसे पूछोगे फॉर्मूला, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, एंड आई डोंट वांट टू बी एबल टू डू दैट. इफ आई कैन डिराइव समथिंग, व्हाई विल आई मग अप समथिंग? If I can derive this formula, why will I mug up this stupid formula? Definitely not. Formula याद करने का जरूरत ही नहीं, derive भी नहीं करने का जरूरत है वैसे तो. ये जो joint probabilities हुआ, correct? These are all the joint probabilities. समझ रहे हैं? और ऑयल ऊपर जाना नीचे जाना, irrespective of anything, it's the independent event, and these are the unconditional probability of the independent event. When you talk about the dependent event, ONGC ऊपर जाने का total probability is 58%, ONGC नीचे जाने का total probability is 42%. These are the unconditional probabilities of the dependent event. ONGC ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, provided that oil has gone up. These are the conditional probabilities of the dependent event based on the condition being the independent event. कि independent event ऊपर गया नीचे से गया, उसके basis पर dependent event ऊपर नीचे जाने का जो probability है, that is your this thing. That is your conditional probability of the dependent event. दोनों event एक साथ होने का and joint probability PA into PB वाला काम कर रहे हैं in a way. तो 60% into 80% is 48, 60 into 20 is 12%. अभी आप बोलेंगे PA into PB कर दिया आप तो गलत कर दिया. इंडिपेंडेंट इवेंट बोला था PA into PB, PA intersection B, ऑयल गोइंग अप एंड ONGC गोइंग अप में PA into PB करोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए करते थे ना. तो यहाँ पे कैसे की है? ये PB नहीं है भाई. यहाँ देखो ये क्या कर रहे हो. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल गोइंग अप into probability of oil ONGC going up given that oil has gone up. You're not doing PA into PB as PA intersection B. If you want this formula, this is what 48% is what 16 to 80, right? This is 16 to 80, right? And that is what
If I write it over here, it is P probability of B, oil going up, into probability of ONGC going up, given that oil has gone up. It is not PA into PB. This is PA intersection B, right? PA intersection B is not equal to PA into PB. What have I multiplied? I have multiplied probability of oil going up into probability that ONGC has gone up, given that oil has gone up. I have not done PA into PB. It is not an independent event, it is a dependent event. Right? And PA intersection B is not equal to PA into PB over here. It is PA into PA given that B has happened. समझ रहे हैं? ये सब चीज के लिए स्कूल में कितना क्लासेस लगाए थे याद करो प्रोबेबिलिटी के लिए एंड द फॉर्मूलाज व्हिच यू हैड लर्नड बेस अभी आएगा यहां तक ठीक है एवरीबडी कंफर्टेबल ये वाला चीज पूरा कॉपी करिए फिर बेस करा रहा हूं I've done nothing new. You knew how to make this table and all. There's nothing great we are doing over here. Please copy this very quickly. And formula बनाना सीखो खुद से ये PA, B ये सब फालतू चीज बनाना सीखो And make sure you name the terms कि unconditional क्या है, conditional क्या है. You write it down for one sum. Bayes theorem is also simple, as simple as this. Done? Everyone?
हुआ? नहीं नहीं नहीं, 48 ही होगा ना आउट ऑफ टोटल 100 केसेस. टोटल 100 केसेस में ONGC हैज गॉन अप एंड ऑयल हैज गॉन अप इन 48 आउट ऑफ टोटल 100 केसेस ना. 48% कैसे आया? 48% आया 60 into 80 से. टोटल 100 केसेस में दोनों चीज कब हो रहा है? ONGC भी ऊपर गया है एंड ऑयल भी ऊपर गया है. दोनों इवेंट हैज हैपेंड 48 टाइम्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 टाइम्स. यहां पर आई एम नॉट टेलिंग यू ना कि ऑयल हैज गॉन अप और ऑयल हैज गॉन डाउन. सो देयर इज नो सैंपल स्पेस उसके हिसाब से, राइट? सी इफ देयर इज एनी इशू गाइस, एवरीबॉडी क्विकली. डन. सो बेसिकली द इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा. टोटल conditional probability of the dependent event given that oil has gone up or given that oil has gone down, and these are the joint probabilities of the dependent and independent happening together at the same time. यहां पर sample space में oil has gone down, तो sample space is oil गिरा हुआ वाला part, that 40 कि oil गिरा है, that is a fact, that is a sample space out of which ONGC कितना बार ऊपर गया नीचे गया, that's what we are asking over here, right? Now when you talk about Bayes theorem, it's a very simple thing. When you talk about Bayes theorem, it's a very simple thing. इसको और Bayes theorem को कंपेयर करना, इसको एंड Bayes theorem को कंपेयर करना. What is the difference between the two? Try to understand. इसका मतलब यहां पर अपने बोल रहे what is the probability कि ऑयल ऊपर गया है given that ONGC has gone up. It does not mean कि ONGC के बेसिस पर ऑयल डिपेंड करता है. जब यहां पर आप सेम चीज कर रहे थे कि what is the probability of ONGC going up or down based on oil going up or down, it was known as conditional probability because you were trying to find out कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होने का probability क्या है. लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं कि अगर आउटकम ऐसा है, आंसर ये है, तो क्वेश्चन क्या होगा ये बताओ. इफ द आउटकम इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सपोज आई टेल यू दैट ONGC has gone up. ONGC has gone up in how many cases? 48 and 10, total 58 cases, right? That is the sample space. Now ONGC has gone up. Concentrate. जब आप बोलते हो probability of dependent event based on independent event का ये होने का, यहां पर अपने बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये हुआ होगा अगर मेरा आंसर ये आ रहा है, अगर मेरा आउटकम ये है. सो बेस्ड ऑन द आउटकम यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैव हैड हैपेंड अर्लियर. इट डज नॉट मीन कि ONGC के ऊपर ऑयल डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल भी इसका मीनिंग नहीं है. दैट इज व्हाई दिस इज बेस्ड हियर एंड दैट्स इट. सो आउट ऑफ अ टोटल, इफ ONGC हैज गॉन अप, what is the probability, what would have been the probability of oil going up? कि अगर ONGC ऊपर गया है तो ऑयल ऊपर जाने का probability क्या है? What is the probability कि ऑयल ऊपर गया होगा अगर ONGC ऊपर गया है तो? ONGC ऊपर गया है total 48 and 10, 58 cases में, out of which oil has gone up in how many cases? 48. So 48 by 48 plus 10. ONGC has gone up in how many cases? 48 plus 10, right? Out of which oil has gone down in 10 cases out of those 48 and 10 cases. So this ONGC has gone down in how many cases? 12 and 30 cases. Out of which oil has gone up in 12 cases. Right? This is your Bayes theorem. खत्म. Conditional probability इस जहां पर आउटकम का डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट इवेंट.
But when you want to find out what is the probability of the independent event based on the outcome of the dependent event, that same thing is known as Bayes theorem. That's all. अब वही इसका फॉर्मूला क्या है, ये PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA इंटरसेक्शन वो B वाला कुछ होगा, B नॉट प्लस PA इंटरसेक्शन B, वो दैट वो फॉर्मूला वैसे बनेगा आपका. वो फॉर्मूला आई डोंट नीड टू बॉदर. दिस इज योर बेस थ्योरम, दैट्स इट, कंप्लीट. और कुछ नहीं है बेस थ्योरम में. हाँ, your problem is going to be in the exam, you are going to be given questions wherein you'll have to understand, decipher from the question which is the dependent event, which is the independent event. Good questions, tricky questions में क्या करेगा, बेस थ्योरम का आंसर दे देगा और कुछ और निकालने बोलेगा. They'll give you this as the answer. The probability of oil going up, given that ONGC has gone up, is this. Now, what is the probability that this would have had happened? Something like that. So they'll give you anything in the question and they'll ask you to find out anything. बोलो, following everybody? This is what they're doing. But इसमें और कुछ नहीं है. आप ट्री बना लेंगे, कोई भी मिसिंग फिगर होगा, let's say this 80 is missing and this is given. So इसको यूज करके यही फॉर्मूला इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करो सोच करके. You construct, you back calculate something, then you back calculate something. मतलब this will give you this will give you this. 3-4 स्टेप में आंसर आएगा. आपको ट्री बनाना आना चाहिए. You have to understand which is the dependent event, which is the independent event. What is conditional probability, what is unconditional probability. But you have to understand that, not mug it up. See, if there is an issue, you tell me. बोलो, समझ में आया बेस थ्योरम? What is the probability that this would have had happened given that the outcome is this? So outcome जो हुआ है, ये तो sample space वाला हो गया ना. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ONGC ऊपर गया है, that is a fact. So out of these 58 cases we are discussing, ना, this becomes your new sample space because I'm telling you ONGC has gone up. So the 48 and 10 is your sample space, ना. This is happening, so this is the sample space. इसके अंदर में बताओ ऑयल कितना बढ़ा है, कितना गिरा है, उसका probability. बोलिए, if it's comfortable. That's all that Bayes theorem is all about. बोलो, ठीक है यहाँ तक? उसके बाद में let's do a Bayes theorem का sum and then we'll move forward with a few different things. ये रेस कर दूं पूरा? ओके, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा छूटा है स्टार्टिंग का, बता देता हूं. अब सपोज प्रोबेबिलिटी इज 1:7. ऑड्स इन फेवर, टोटल 7 केस है ना, फेवर में 1 है एज अगेंस्ट 6. ये दे दूंगा तो ये निकाल दोगे, ये दे दूंगा तो ये निकाल दोगे. ये एक थ्योरेटिकल सा चीज है. कोई घोड़ा वोड़ा लेके एग्जाम्पल दिया है, देख लेना. As far as I remember, देख लेना. 1:7 is the probability. The probability is 2:7. मतलब there are 2 favorable outcomes for every 5 unfavorable outcomes. Total 7 cases, and there are 5 unfavorable outcomes for every 2 favorable outcomes. Odds in favor 2:5 every 5. So 2 is in favor as compared to 5 is against me, and odds against is 5:2. Simple. So the first half of the chapter is done and a part of the second half. Expected value वाला section छोड़ करके second half में भी वही probability दिया हुआ है, वो सब done है. उसके बाद में एक छोटा सा section है, वो करा देता हूँ. उसके बाद में अपने बेस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं. Let's say permutation, combination, labeling का. I'll just take up the sum and I'll do it. It will be easier. Labeling करके वो क्वेश्चन बोलता है, consider a portfolio consisting of 8 stocks. When you talk about a portfolio, मतलब group of stocks together. So there is a portfolio of 8 stocks and you want to label 4 stocks as long-term hold bond and 3 stocks as short-term hold and 1 stock as sell. It's 182, page 182. चैप्टर का 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कर लिया अपने, सेकेंड पार्ट आई विल डू लेटर एंड थर्ड पार्ट में आ गए अपने, जहां बेस थ्योरम था वो करा दिया है. उसके बाद लास्ट एलओएस में ही होगा लेबलिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. बहुत सिंपल सा बेसिक 3 सा मैं बता दे रहा हूं, बट टेस्टेबिलिटी इज लोअर. बेस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट. बेस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट इज रबिश.
लेबलिंग वाला पार्ट में बोलता है मेरे पास 8 स्टॉक्स है, आप बोलते हो उसमें से मेरे को 3 स्टॉक को नेम करना है, 4 स्टॉक को लॉन्ग टर्म बोलूंगा, 3 स्टॉक्स को बोलूंगा शॉर्ट टर्म है, एंड 1 स्टॉक को बोलूंगा सेल है. हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, सेल. यू वांट टू कैटेगराइज दिस वे. 8 स्टॉक्स को हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज? 8 वेज इंटू 7 वेज इंटू 6 वेज. 8 में से कोई भी एक स्टॉक को डाला, बचा हुआ 7 को कोई को भी एक को डाला, बचा हुआ 6 को डाला. सो बेसिकली 8 फैक्टोरियल वेज यू कैन अरेंज ऑल द स्टॉक्स इन दिस. उसमें से जो 4 स्टॉक यहाँ पे अरेंज है उनका आपस का अरेंजमेंट भी तो 4 फैक्टोरियल वेज में हो रहा है. आई डोंट केयर ना, चारों ही तो लॉन्ग टर्म है. ए बी सी डी लिखूं, ए सी बी डी लिखूं, ए डी बी सी लिखूं, डजेंट मैटर. ए बी सी लिखूं, सी बी ए लिखूं, बी सी ए लिखूं, डजेंट मैटर. 1 फैक्टोरियल लिखने का जरूरत नहीं था. लेबलिंग, you want to label 8 stocks. You want to categorize 8 stocks into 3 categories. 4 stocks as long term, 3 stocks as short term, and 1 stock as a sell stock. You want to categorize 8 stocks in these categories. मतलब 8 stocks को मेरे को इसमें अरेंज करना है. A, B, C, D, E, F, G, H करके मेरे पास 8 स्टॉक है. अब मैं A, B, C, D, E, F, G, H में से 8 में से कोई भी एक डाल सकता हूँ. 8 ways I can start. I can start with an A or a B or a C. I can start with any of the 8 ways, right? रिमेनिंग 7 स्टॉक्स में से कोई भी 7 को डाल सकता हूं. तो देयर आर 7 वेज आई कैन डू. ए से स्टार्ट किया तो बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच बी, मतलब देयर कुड बी इन्यूमरेबल दीज थिंग्स, राइट, अरेंजमेंट्स. देयर आर 8 फैक्टोरियल वेज, राइट, 8 into 7 into 6 into 5 into 4. बोलो एवरीबडी, राइट. एंड जब मेरा नेक्स्ट वाला चीज आया, जब मैं बोल रहा हूं कि यार ये 4 को लॉन्ग टर्म बोले हो तो ए बी सी डी करो, बी सी ए डी करो, बी डी सी ए करो, इट डजेंट मैटर. मतलब ये लोग आपस में 4 into 3 into 2 into 1 वे में अरेंज किए होंगे ना हर एक स्टॉक. सो आई नीड टू रिमूव दैट. एंड 3 फैक्टोरियल वेज में दीज 3 स्टॉक्स वुड हैव अरेंज्ड. आई नीड टू रिमूव दैट. सो इट्स सिंपल 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. ये लेबलिंग हो गया. दूसरा बोलता है कि 8 स्टॉक है, उसमें से कोई भी 3 स्टॉक को मेरे को सिलेक्ट करना है, एनी 3 स्टॉक्स रैंडमली. I want to take up, I want to group 3 stocks together out of 8 stocks. I want to select 8 stocks में से 3 stocks. So how do I select? अभी उसके बाद में बोलता है suppose I will buy 3 stocks, but I will buy एक एक करके. I said 8 स्टॉक है, उसमें से 3 स्टॉक को खरीदूंगा एक साथ. This one, आप बोलते हो out of 8 stocks, I will buy 1 stock 100 shares, 1 stock 50 shares, 1 stock 20 shares. Now ABC या ACB या BCA होगा, different हो जाएगा ना, 100 shares, 50 shares, 20 shares. So then it will become 8p3. तो समझ में आ रहा है ये चीज. अब 8p3 हो गया ना. अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स. 8c3 में दी अरेंजमेंट डिड नॉट मैटर. 8c3 अगर हुआ तो 8 into 7 into 6 ways I can select 3 stocks. उनका आपस का अरेंजमेंट डजंट मैटर. दैट इज 3 फैक्टोरियल. ये कैसे आया था? इफ यू गाइज रिमेंबर, दैट इज n फैक्टोरियल. 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. 5 4 3 2 1 कट रहा था. और ये 8p3 क्या था? दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. द अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट. सो वी डू नॉट रिमूव दी रेपिटेशंस ऑफ अरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम. यही था ना. अब ये r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ये सब फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है. अपना कैलकुलेटर में प्लस साइन और माइनस साइन देखिए. प्लस साइन माइनस साइन के ऊपर में देखो NCR NPR लिखा हुआ है, एंड मल्टीप्लीकेशन साइन के ऊपर में फैक्टोरियल का साइन लिखा हुआ है. मिला? सो इफ आई वांट टू डू एन 8c3, I will press 8 second plus sign 3 equal to, because second plus is C, आंसर आ जाएगा. I want to do 8p3, 8 second minus sign 3 equal to, and if I need an 8 factorial, 8 second multiplication sign and equal to. सिंपल है ये तो. ये फॉर्मूला, ये n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, सब फॉर्मूला का जरूरत नहीं है. बट अगेन इफ यू अंडरस्टैंड, आई कुड डिराइव दिस फॉर्मूला इवन आफ्टर, यू नो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैज बीन इयर्स किए हुए. फॉर्मूला डिराइव करने में कुछ नहीं जाएगा. बेसिकली क्या है, 8 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करना है. तो पहला स्पेस में पहला चॉइस है, 8 चॉइसेस है. 8 में से कोई भी एक सिलेक्ट किया, बचा हुआ 7 को सेकंड में सिलेक्ट किए, बचा हुआ 6 को सिलेक्ट किए, 8 into 7 into 6, एंड उनका आपस का अरेंजमेंट हटाना है. तो 8 into 7 into 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड 8 into 7 into 6 into 5 into 4 तक करोगे अगर पूरा एंड तक, तो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल कर दोगे.
तो 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial, that is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. ये सब नहीं करना है, ये अपने को नहीं चाहिए. I'm just explaining for those who remember class 11 and 12 में किया हुआ, I'm just explaining that bit. But this is NCR and NPR. You have to understand NCR when the arrangement is not important and NPR when the arrangement is important. When the arrangement makes sense. कोई भी randomly 3 स्टॉक सिलेक्ट करना है, doesn't matter पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है. बट अगर मैं बोलता हूँ कि एक को 100 शेयर खरीदूंगा, पहला वाला को 100, दूसरा वाला को 50 एंड तीसरे वाले को 25 शेयर्स, देन द अरेंजमेंट मैटर्स ना, द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड, बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आई विल बी बाइंग फॉर द डिफरेंट स्टॉक्स. बोलो, मेकिंग सेंस? This completes more or less your probability वाला part. We will start with the expected value. That is where the probability and statistics come together. ठीक है, पहले बेस थ्योरम का एक सम करेंगे. If you turn towards the end of your book, एक M Atwood का सम होगा पीछे सम्स में, कॉन्सेप्ट चेकर्स में. एम एटवुड का सम मिला, बॉन्ड के ऊपर एक सम है छोटा सा. कॉन्सेप्ट चेकर्स में टुवर्ड्स द एंड, उसी चैप्टर के पीछे कॉन्सेप्ट चेकर्स में you'll have the थर्ड सम आई गेस. चैलेंज प्रॉब्लम्स के बाद में कॉन्सेप्ट चेकर्स है, उसका थर्ड प्रॉब्लम. चैलेंज प्रॉब्लम्स के बाद थर्ड प्रॉब्लम एम एटवुड मिला. अच्छा, चैलेंज प्रॉब्लम्स में होगा. हाँ, चैलेंज प्रॉब्लम्स का थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, हाँ थर्ड, एम एटवुड, पेज 193. चैलेंज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन 3 पढ़ो. We'll do the third one and we'll also do the last one. The question is, M. Atwood, an analyst, has developed a scoring system for bonds and found that if the score from a bond is less than 20, there is an 85% probability that it will default within 5 years. Now, what do you understand by a scoring system? कई बार क्या होता है ना, अपने को बहुत सारे कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड्स का कंपैरिजन करना है. So what I do is I take a Tata company, Mahindra is there, Reliance is there, Infosys is there. वो कंपनीज का रेशियो लिया, डेट इक्विटी रेशियो, profitability ratio, interest coverage ratio. You'll do these ratios in financial reporting, so those who are not getting it. हम उन कंपनीज का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा लिया है, वो सारा चीज़ देख करके ना उन लोग को हर एक क्राइटेरिया पे स्कोर दिया और वो स्कोर का टोटल किया. उसके बाद में देखा जिसका स्कोर ये फाइंड आउट किया कि जिसका स्कोर इज ग्रेटर देन 20, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लो, एंड जिस लेस देन 20 उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हाई. मतलब जिसका स्कोर अच्छा आएगा वो कंपनी अच्छा, जिसका स्कोर खराब आएगा वो कंपनी खराब. सो आई हैव सर्टेन कैटेगरीज, सर्टेन रेशियोज एंड ऑल, उसके बेसिस पर वो लोग को एक स्कोर दूंगा. वो स्कोर के बेसिस पर टोटल स्कोर आएगा, वो टोटल स्कोर के बेसिस पे बोलूंगा वेदर दिस कंपनी इज अ गुड कंपनी, बैड कंपनी, राइट. सो दे डिड दैट फॉर द बॉन्ड. सो स्कोर के बेसिस पर देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज अप और डाउन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के बेसिस पे स्कोर आएगा. स्कोर के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आएगा ना, कि स्कोर हाई हुआ तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड वाइस वर्सा. So, first of all, I understand the score is greater than equal to 20 or the score is less than 20. अच्छा, अभी बोल रहा है कि if the bond score is greater than or equal to 20, there is only a 40% chance of default. तो greater than equal to है, तो default का chance is 40%. If the score is greater than equal to 20, then the probability of default is 40%. Conditional probability. अगर score greater than equal to 20 है, तो chance of default is 40. और इधर बोला था कि तो चांस अगर स्कोर लेस देन 20 है तो डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी आपको बोला 85% है. ठीक है. द मोमेंट आई हैव दिस काइंड ऑफ दीज टू फिगर्स, आई हैव अ 60% ऑफ नॉट डिफॉल्ट, अ 15% ऑफ नॉट डिफॉल्ट. दिस इज रेडी. नेक्स्ट बोल रहा है, given that a randomly chosen bond currently has a 25% probability of a score less than 20. मतलब रैंडमली कोई बॉन्ड को उठाएंगे तो उसका स्कोर लेस देन 20 होने का प्रोबेबिलिटी इज 25%. फॉर अ रैंडमली चोजन बॉन्ड द स्कोर बीइंग लेस देन 20 का प्रोबेबिलिटी इज 25%. ये कितना होगा? 40-60 करेंगे कितना आएगा? 25 का 85-15 करेंगे कितना आएगा? सॉरी, cannot be 51.25. Correct. Joint probabilities, unconditional probability of the score,
conditional probability of the default or not default based on the outcome of the scores, joint probability of the default and the score going up, score being high, not default and the score being high, ये joint probabilities हुआ. Unconditional probability default का निकालना है. So there is a 51.25% chance that a bond is going to default and a 48.7% chance that a bond is not going to default. Simple. Question तो पढ़ा ही नहीं है. Question देखते हैं क्या बोल रहा है. What is the probability that a bond that defaults within the next 5 years has a score of 20 or higher? अगर bond default कर रहा है, what is the probability that a bond that defaults has a score of 20 or higher? That is what they've asked. Now, what is the probability for a bond that default? Bond default कर रहा है. What is the probability कि उसका score greater than or equal to 20 रहा होगा? Simple है यार. Default का probability कितना है total? 30 plus 21.25 cases. उसमें से score greater than 20 कितने का रहा है? खत्म. It's that simple. Bayes theorem is that simple. Try to understand. Bayes है ना? Outcome अगर ये है तो what is the probability कि score ये रहा होगा? बोलो, everybody is clear till here? Last question, if you check, building material का है क्या? Challenge problems का? Challenge, turn to the next page. Last question, 8, right? You are forecasting the sales of a building materials. Question number 6, last question of challenge problem. You are forecasting the sales of building material. Do that some quickly, I'll do that and then we'll take a break, 2 minutes ka. And exam में भी sums ऐसे ही करोगे. यही ट्री बना करके इसी तरीके से रफ में पेपर पे you'll get a lot of space on the question paper. You'll make this kind of stuff and you'll do the sum like this only. Last one, 6. Challenge problem का 6, building material. Done?
Done. Let's do it quickly. You're forecasting sales of a building material supplier by assessing the expansion plans of its largest customer, a home builder. तो सेल्स फोरकास्ट करेंगे कि अपना बिल्डिंग मटेरियल है, अपने वो सप्लाई करते हैं, तो अपने कितना सेल करेंगे बेस्ड ऑन कि अपना जो लार्जेस्ट कस्टमर है वो एक्सपैंड करेगा कि नहीं. तो अपना लार्जेस्ट कस्टमर जो है वो एक्सपैंड करेगा तो अपने मटेरियल्स और ज्यादा बाई करेंगे बिकॉज वी नीड टू गिव हिम मोर. So that's the question. You estimate the probability that the customer will increase its order for building materials to 25%. You estimate the probability that the customer will increase its order for building materials to 25%. If the customer does increase its order, you estimate the probability that the home builder will start a new development at 70%. If the customer does not increase its order from the supplier, you estimate only a 20% chance that there will be a new development. Later you find out that the home builder will start the new development. In the light of this new information, what is your new updated probability that the builder will increase its order from the supplier? Getting the idea of the question? तो क्या होगा बताइए, किस तरीके से भी go about? Increase order. एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, सिंपल. राइट. प्रोबेबिलिटीज बताएगा क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या निकालने बोला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इन द लाइट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन यू नो दैट द पर्सन, द होम बिल्डर इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू डेवलपमेंट. मतलब ये है, दिस इज द फैक्ट. फैक्ट मतलब आया 25 का 70% कितना हुआ, एंड 75 का 20% इज, so out of 17 and a half and 15, in the light of the new development that the person is going to start expansion, what is the probability that builder will increase its order from the supplier? Increase order का खत्म. question done. ठीक है. a small little theory वाला पार्ट छूटा था. what's an empirical probability, priori probability, and एक subjective ही बोला है ना. what is subjective probability? if you see, it's on the second page of the chapter. प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट हाफ पूरा हो गया, लास्ट हाफ हो गया, बीच का पोर्शन बचा है. उसमें एक थ्योरी पार्ट छोड़ दिया था, भूल से बताना भूल गया. प्रायरी प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. when you analyze the past data and based on the past data you want to see what is the probability and all, that is your empirical probability. empirical मतलब based on the past data, based on the past evidence, right. priori probability हुआ जहां पर you are trying to use certain kind of a logic कि अगर ऐसा होगा, ये होने का चांस सपोज 40% है, तो ऐसा होने का चांस क्या है, वैसा होने का चांस क्या है. सो बेस्ड ऑन सर्टेन डिडक्टिव लॉजिक और समथिंग, यू नो, दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, उसके बेसिस पे व्हेन यू ट्राई टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी, दैट इज नोन एज अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उस तरीके से बेस्ड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिक. एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज सिंपल जजमेंट बेस्ड ऑन योर जजमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज सब्जेक्टिव. तो 3 लाइन थ्योरी दिया है, ज्यादा कुछ है नहीं. उसके बाद में कंडीशनल क्या है, अनकंडीशनल क्या है, एडिशन रूल, वडिशन रूल, ऑल रबिश. सो यू नो ऑल ऑफ दैट, यू विल बी एबल टू डू एवरी सिंगल सम, एवरी सिंगल क्वेश्चन. ठीक है. देन यू कम टू अ सेक्शन वेयर यू हैव समथिंग कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू रिटन एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स डिस्क्राइब्ड. उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड पोर्टफोलियो का भी पोर्शन इज देयर एंड दैट्स देयर. ओके, सो देन वी स्टार्ट विद द कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. Now concentrate very well. जब अपने मीन निकालते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन. अभी वो सैंपल छोड़ दो, ठीक है. और अपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, यू डू एन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन, राइट. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. यू ऑल्सो हैव लर्न्ड हाउ टू कैलकुलेट दिस ये क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज मीन एंड ऑल. ये आता है. W की जगह में भी F यूज किए होंगे आप लोग स्कूल में. That's what we've done, no? Weighted average mean and all. Say for example, I'll tell you 20% students का height is 5 feet, 40% students का height is 5.5 feet, and 30% students का height is 6 feet, and only 10% students का height is let's say 4 feet कर देता हूँ. ठीक है.
सो 20 एवरेज हाइट क्या है लोगों का? आप क्या बोलोगे? 20% इंटू 5 प्लस 40% इंटू 5.5, 30% इंटू 6, 10 इंटू 4. इट इज पॉसिबल, यहाँ पे तो मैंने परसेंटेज कर दिया है. इट इज पॉसिबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 10, 12, 16, इस तरीके का कुछ. आप क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ? 22, 32, 38, 48. So 10 by 48 into this, 12 by 48 into this, 16 by 48 into this, 10 by 48 into this, या फिर this into this, this into this, this into this, this into this, divide by 48, sigma w x by sigma w कैसे भी कर लो. This into this, सारा चीज का multiplication last में by 48 या this by 48 into this plus this by 48 into this, split कर लो, बात एक ही है. This is okay, right? ये part आता था. अभी देखो, when you use weights, when you use probability as weights, what you get is expected value. पास्ट का डेटा को यूज करके सपोज आप सोच रहे हो, सपोज इज अ पास्ट का डेटा, आई यूज पास्ट का डेटा एंड आई एम सेइंग देयर इज अ 10% चांस दिस विल हैपन, देयर इज अ 20% चांस दिस विल हैपन, देयर इज अ 40% चांस दिस विल हैपन एंड 30% चांस दिस विल हैपन. कैन आई नॉट जस्ट यूज प्रोबेबिलिटीज एज वेट्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन फ्यूचर? जो एग्जांपल पहले दिया था, 50% चांस है मेरा सैलरी 1 लाख होगा, 50% चांस है मेरा सैलरी 2 लाख होगा. आप बोले आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? यू इमीडिएटली टोल्ड मी 1,50,000. When I told you there is a 25% chance that my salary is 1 lakh and there is a 75% chance that my salary is equal to 2 lakh, you immediately told me your expected salary is 1,75,000. What did you do? 25% into 1 lakh plus 75% into 2 lakh. यही तो किए हो आप, और क्या किए हो? बेसिकली जब प्रोबेबिलिटी का बात करें, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? किसी चीज के होने का चांसेस. व्हाट इज द चांस दैट समथिंग विल हैपन? दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, राइट? किसी चीज का होने का चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग? दैट इज प्रोबेबिलिटी, राइट? सो इन दैट सिचुएशन, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्या होगा उसका चांसेस, डोंट यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, व्हाट एन एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर टाइप का चीज. We are trying to understand that what is going to happen in the future, what is the expectation of something turning up, of something materializing. It's an expected value, expected salary, expected value in future. I don't want you people to learn 20 new formulas, so that is why if you understand this, it gets easier. जब मेरे को expected value निकालना है, what is the expected value of x? That is equal to sigma px. Probability को weights use करेंगे, तो ये फॉर्मूला को कन्वर्ट करो, वर्क करेगा. प्रोबेबिलिटी को वेट्स यूज किया, सिग्मा पी एक्स बाई सिग्मा पी होना चाहिए हिसाब से, बट सिग्मा पी इज इक्वल टू 1 ना. द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 1, सो आई डोंट नीड टू डिवाइड इट बाय सिग्मा पी, दैट इज इक्वल टू 1. सो सिग्मा पी एक्स. अब यहां पर अगर मेरे को करना है, तो एक्सपेक्टेड, लेट्स से वेरिएंस का अगर बात करें या स्टैंडर्ड डिविएशन, लेट्स से एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा पी x minus x bar, x minus, can I say expected value of x in this case? क्योंकि expected value of x is the average here ना. So expected value of x को मैं average में लूंगा, whole square divide by sigma p, that is 1. So formula आ गया ना expected standard deviation का. बोलो, making sense? So all you need to do when you're calculating expected values in the future, what do you need to do? Expected values निकालने के लिए all you do is use probabilities as weights. When you use probabilities as weights, you get something called the expected value. बोलो, ठीक है यहाँ तक? एक फॉर्मूला और करा दे रहा हूँ, ऑलरेडी तुम लोग को अभी नहीं सिखाया है, इसके बाद कराऊंगा, बट जस्ट टेक द फॉर्मूला, सिंस वी आर डूइंग दिस, जस्ट टेक इट डाउन. Just take this down. Covariance समझाऊंगा, अभी नहीं समझाया ये part, I'll get to this. But you understand the idea of expected value. वे expected SD, हाँ square root भी करना होगा.
ठीक है यहां तक? So when you use probabilities as weights, what you get is expected value. इसका कैलकुलेशन में ना कई बार थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, तो खाली एकदम शांति से समझिएगा. x बार इज इक्वल टू ई एक्स ओवर हियर. ऑब्वियसली जहां पर आपको x माइनस एक्स बार करना है, आप x बार नहीं लोगे, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लोगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड मीन ओवर हियर, राइट? दिस ओके टिल हियर? ओके. Next, we move on to understanding what is covariance and correlation. And then again, I'll get back to this part. All right. जहां पर अभी तक हम लोग जो किए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, व्हाटएवर वी वर डिस्कसिंग, we always discussed how is the return of a particular distribution arranged. How is the return of, let's say, an SBI or an ITC or a Tata Motors. So, अच्छा, Tata Motors का रिटर्न का एवरेज क्या है? Tata Motors का रिटर्न कैसे डिविएट कर रहा है, अरेंज कर रहा है अपने आपको मीन के आसपास? Is there an extreme outlier, extreme event around Tata Motors का रिटर्न? और Tata Motors का रिटर्न is more around the mean or more around the extreme ends? All that we have discussed. We always discussed till now, we were studying one distribution, the return of a particular stock. That is what we've done. Now say for example, I want to find out the relation, the movement of two different distributions with respect to each other. ऑयल का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओएनजीसी, कि उनका आपस में जो मूवमेंट है उनका, अगर मैं आपको ऑयल के प्राइसेस लिख दूं एक कॉलम में, जनवरी फरवरी मार्च करके 10 साल का, एंड आई गिव यू ओएनजीसी का शेयर प्राइसेस 10 साल का, विल यू सी डू दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और डू दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? इफ आई वांट टू फाइंड आउट दैट. नाउ इस पार्ट में अभी थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन दिया हुआ है, तो अभी आप जो पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड. पूरा का पूरा पोर्टफोलियो का फर्स्ट हाफ इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम क्वांट्स. Like there are 5 chapters, उसमें से 2 चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है that is with respect to quants. I'll ask you a simple question. When I'm talking about a stock, उसका एवरेज रिटर्न आया. When I'm talking about a stock का रिस्क, you talk about its standard deviation. When I talk about a portfolio, let's say I take 2 stocks together, उसका रिटर्न का बात करूंगा तो दोनों स्टॉक्स का रिटर्न का क्या करोगे? AM की GM. AM 2 अलग अलग स्टॉक का अरिथमेटिक मीन ले लोगे तो रिटर्न ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो ऑफ द टोटल स्टॉक्स टुगेदर आ गया, राइट? नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर वो दोनों स्टॉक का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पूछूंगा, रिस्क पूछूंगा, एक बात बताओ, तो क्या दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन जोड़ दोगे वेटेड एवरेज करके? क्यों? सपोज करो इफ देयर इज वन स्टॉक दैट मूव्स अप एंड द अदर स्टॉक आल्सो मूव्स अप एट द सेम टाइम, या तो दोनों बढ़ता है या दोनों गिरता है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न सोचो कैसा होगा? आइदर बोथ आर अप बोथ आर डाउन, इस तरीके से मूव करेगा. अगर एक स्टॉक जब बढ़ता है तो दूसरा हमेशा गिरेगा, एक स्टॉक जब गिरता है दूसरा हमेशा बढ़ता है. इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, डोंट यू सी कि एक दूसरे का बढ़ना, पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज विल बी वेरी बैलेंस्ड. पोर्टफोलियो ऑन एवरेज विल बी वेरी बैलेंस्ड. सो इफ वन स्टॉक मूव्स लाइक दिस, another stock moves like this, then the portfolio moves like this. But if one stock moves like this, another stock moves in the opposite direction, the portfolio averages out. कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला. इसमें मूवमेंट ज्यादा है, दोनों का कंबाइंड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे का मूवमेंट को ऑपोजिट करके एवरेज आउट कर दे रहे हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न्स को. डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्क ऑफ द ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 एसेट्स टुगेदर, आई नीड टू आल्सो इनकॉर्पोरेट द फैक्ट दैट उनका आपस का मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स कैसा है. इफ यू टॉक अबाउट बेसिक इकोनॉमिक्स, दोज हु अंडरस्टैंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री का दाम बढ़ता है तो दूसरा वाला चीज का दाम गिरेगा. पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का गाड़ी का दाम गिरेगा. कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का हो गया ना, सॉरी, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो. क्या तेल का दाम बढ़ेगा तो तेल का गाड़ी लोग कम खरीदेंगे तो उसका दाम गिरना चाहिए, डिमांड विल फॉल. एंड वही चीज अगर देखोगे सब्स्टिट्यूट वाला चीज, कोलगेट का दाम बढ़ाओगे तो पेप्सोडेंट का सेल बढ़ेगा. सो द आइडिया इज यू नीड टू सी द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स. 2 स्टॉक्स का रिलेशन नीड्स टू बी एड्रेस्ड ओवर हियर, कि वो 2 स्टॉक्स आपस में डू दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और डू दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So we need to understand that relation when you're talking about the combined risk of a portfolio. So basically what I'm trying to hint at over here is we need to understand the terms covariance and correlation. ये जो 2 terms है, तो अभी तक जो skewness kurtosis तक का जो पढ़ रहे थे, that was talking about the attributes of a single distribution. Now we want to find out कि 2 अलग-अलग distribution का आपस में relation क्या है. We want to understand the relation. The first part we will want to understand is whether the relation is a positive or a negative. मतलब एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है. Do they move in the same direction or the opposite direction or not? That's the first thing. And the second thing which we want to understand is the strength of the relation.
द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन मतलब आज मैं बोलता हूं कि लेट्स से इफ स्टॉक ए मूव्स 10 रुपीज, स्टॉक बी विल आल्सो मूव बाय 10 रुपीज ऑलवेज और 20 रुपीज ऑलवेज. एंड एक मैं बोलता हूं कि स्टॉक ए रुपीज, अगर ए मूव करेगा 10 रुपीज, तो स्टॉक बी है दैट मूव्स बाय लेट्स से 12 रुपीज, कभी कभी 8 रुपीज, कभी 7 रुपीज, कभी 15 रुपीज. इफ यू अंडरस्टैंड, अगर ऑयल मूव करता है तो ओएनजीसी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, बट इंटरेस्ट रेट अगर मूव करेगा तो भी ओएनजीसी इंपैक्ट होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा ना. द रिलेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एन ओएनजीसी का शेयर प्राइस. ऑयल इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल में भी ऑयल इज अ कॉम्पोनेंट. बट डोंट यू थिंक ऑयल ओएनजीसी को ज्यादा अफेक्ट करेगा एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमती अफेक्ट करेगा, एटलीस्ट रिलेटिवली in comparison to each other. So we need to not only understand the direction, whether they are in the same direction or not, we also need to determine the strength of the relation. Direction भले covariance बता देगा, strength covariance नहीं बता पाएगा, and we will have to understand what is correlation because of that. So covariance and correlation are the terms that we need to study in order to find out the relation between two variables, right? And then we will get into the portfolio वाला aspect in the next class. So covariance correlation देखिए. I'll give you two streams of data, simple one, let's say 1, 2, 3, 4, 5, and I'll give you let's say a 10. दूसरा I'll give you 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अभी देख के समझ में आ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है. What I want to see is, let's say this is the average. I'll give you the formula of covariance first. You can also write it like this. Standard deviation होता तो खाली sigma x लिखते थे. Covariance है sigma x, y works. ठीक है? Now question over here is, इस formula के हिसाब से देखो, what is the movement of x with respect to its average, at the same time what is the movement of y with respect to its average. So x1 minus x bar into y1 minus y bar, x1 minus x bar into y1 minus y bar, x2 minus x bar into y2 minus y bar, x3 minus x bar into y3 minus y bar, right? उन सबका समेशन कर रहे हैं अपने यहाँ पे. समझो, 1 minus 3 negative into 2 minus 6 negative, negative negative positive, plus 2 minus 3 4 minus 6, negative negative positive, 4 minus 3 8 minus 6, positive positive positive. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन. ये दोनों वैल्यू मीन से कम थी, ये दोनों वैल्यू मीन से ज्यादा, इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. इफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, मीन के नीचे का दोनों का वैल्यूज मीन के नीचे होगा, मीन के ऊपर होगा, मतलब दिस इज लोअर देन मीन, दिस विल आल्सो बी लोअर देन मीन, दिस इज बिगर देन मीन, दिस इज आल्सो बिगर देन मीन एट द सेम टाइम. माइनस माइनस पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव 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 देगा. अगर दोनों उल्टे डायरेक्शन में है तो एक जब मीन के नीचे का वैल्यू होगा तो दूसरा वाला का वैल्यू विल बी मीन के ऊपर, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस. So basically, if the data is moving in same direction, your covariance should be positive. If the data is moving in opposite direction, your covariance should be negative. Correct? वर्क कर रहे हैं यहां तक? अब एक प्रॉब्लम क्या होता है यहां पर, आप पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ गए कि डेटा जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव, द डेटा विल बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, योर आंसर विल बी नेगेटिव. बट द इशू ओवर हियर इज, सपोज करो ये परसेंटेजेस था, ठीक है, अभी मैं ठीक है, आई डू दिस, ये नहीं होगा, आई डू दिस वे. अब मैं कोवेरियंस कैलकुलेट करूंगा, डोंट यू सी द आंसर विल बी क्वाइट डिफरेंट. 1 into 2, 2 into 3 इस तरीके का आंसर आ रहा था, और अब 0.01 into 0.02, पहला वाला का कोवेरियंस आंसर निकलता मे बी 1, 2, 3 के आसपास और 10 के आसपास, वट एवर. सेकेंड वाला का 0.01, 0.02, 0.03 टाइप का आंसर आएगा, या 0.001 के टाइप का आंसर आएगा, बिकॉज 0.01 into 0.01, वहां 2 into 2 हो रहा था, यहाँ 0.02 into 0.02 हो रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग? सो earlier the answer was 4, now the answer is 0.0004. So covariance, can you say that 0.0004 होगा तो strength is very high and 4 होगा तो strength is very low? You cannot comment on the strength based on the magnitude. The sign is going to tell you the direction is positive or negative, but the
मैग्नीट्यूड 4 है कि माइनस 0.004 है कि 4000 है कि 40 लाख है, दैट इज नॉट गोइंग टू टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप. सो कोवेरियंस में स्ट्रेंथ नहीं पता चल रहा, खाली डायरेक्शन पता चल रहा है. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, व्हाट वी डू इज वी स्टैंडर्डाइज कोवेरियंस. In order to get the strength of the relationship, we standardize covariance. वेटेड एवरेज करना होगा तो WW, प्रोबेबिलिटी करना होगा P डालेंगे और X बार और Y बार को EX और EY करेंगे. सिंपल. टू स्टैंडर्डाइज दिस, RX, Y लिखो या रो X, Y लिखो. If you see, the terms will cancel out. Percentage into percentage, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, 20 किलोमीटर माइनस 15 किलोमीटर इज 5 किलोमीटर. माइनस करने से यूनिट नहीं हटता है, डिवाइड करने से. 10 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 किलोमीटर इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस. 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 5 गुना डिस्टेंस है. 10 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर इज 8 किलोमीटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल ट्रिक्स. क्यों ये सब चीज भी बता रहा हूं? क्योंकि फॉरेक्स में काम आएगा ये सब ट्रिक्स. जब फॉरेक्स चालू करेंगे, डॉलर 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 पाउंड सब कटेगा एक दूसरे के साथ. ठीक है? Okay till here. So we just standardize this. This becomes a unit-free measure. Sigma x minus x bar y minus y bar y. इसको sigma x comma y भी बोलते हैं. Comma. Sigma x comma y भी बोलते हैं इसको. You can write it that way. ठीक है? So we standardize this. Now correlation becomes a unit-free measure. Correlation becomes a unit-free measure. इसमें कोई unit नहीं है. Correlation will always range between -1 and +1. Correlation will always range between -1 and +1. Now you need to understand a few things about that. You've taken this down. देख लीजिए, लेना पे ले लीजिए, बुक में भी है. ठीक है? We are talking about two different distributions. Let's say a relation between x and y. We always have the x on the independent axis and y on the dependent axis, right? अगर डेटा इस तरीके का है, इनका रिलेशन इस तरीके का है, your correlation is equal to 1 -1. When your relation is like this, it is relatively positively correlated. R could be something equal to 0.8, 0.7, something like that. ये दिया हुआ है बुक में. So the direction is ऊपर या नीचे, that gives you the plus sign or the minus sign. जो डेटा अगर एकदम फिट बैठ रहा है स्ट्रेट लाइन में, that is 1. जितना डिस्पर्स होगा, suppose not correlated, positively, negatively, perfectly correlated, strongly correlated, weakly correlated, uncorrelated, perfect correlation, strongly correlated, weakly correlated, uncorrelated. This is okay? Try to understand this point very clearly. ध्यान दीजिएगा इधर एक बार. R equal to 1 का मतलब ये नहीं है कि अगर x एक यूनिट बढ़ेगा तो y एक यूनिट बढ़ेगा. Regression and all you'll do it later in level 2. Suppose x and y का ये डेटा को यूज करके ना you can form an equation. Let's say I form an equation y is equal to
5x minus 10. सपोज 5 का मतलब क्या है? अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो y 5 यूनिट बढ़ेगा, राइट? कोरिलेशन 1 का इससे लेना देना नहीं है. When I say that if x increases by 1 unit, let's say oil price increases by 1 unit, that is x. Y is the ONGC का share price. ONGC का price increases by 5 rupees. ठीक है, suppose I give you this. अगर कोरिलेशन 1 होगा, ऑयल 1 रुपया बढ़ेगा, ONGC 5 रुपया बढ़ेगा, ऑयल 1 रुपया गिरेगा, ONGC 5 रुपया गिरेगा. Always, no doubt on that. If correlation is equal to 1. अगर कोरिलेशन 0.9, 0.8 के आसपास होगा, ऑयल 1 रुपया बढ़ेगा, ONGC will rise by, कभी it will rise by 4.8, कभी 4.9, कभी 5.1, कभी 5.2, very close to 5. 5 is not correlation. कोरिलेशन 1 का मतलब ये नहीं है कि अगर 1 यूनिट x बढ़ेगा तो y 1 यूनिट बढ़ेगा. कोरिलेशन 1 का मतलब ये है कि अगर x 1 यूनिट बढ़ेगा तो y हमेशा by the same amount बढ़ेगा. So when correlation is 1, x increases 1 unit, y increases by 5 units always. If correlation is, let's say, 0.8, 0.9, if x increases 1 unit, y will increase by, let's say, a 4.8, a 4.9, or a 5.1, or a 5.2 kind of unit, anywhere between that. If correlation is equal to, let's say, 0.4, 0.5 के आसपास, y will x 1 unit बढ़ेगा तो y will increase कभी 3, कभी 3.5, कभी 4.5, कभी 7, कभी 6, कभी 6.5. Now the relation is not very strong. Oil का price is not driving ONGC का price that strongly because the correlation is low. The relation is not very strong. वो नेगेटिव होगा तो वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा खाली. बाकी स्ट्रेंथ का मतलब यही है. जीरो कोरिलेशन मतलब ऑयल 1 रुपया बढ़ेगा, ONGC could increase, decrease by any unit, you cannot say anything. So when correlation is 1, oil 1 रुपया, ONGC always 5 रुपया. जैसे से कोरिलेशन कम होगा, your band increases, your amount increases. यहाँ देखो ना, 1 यूनिट मतलब 5 यूनिट, स्ट्रेट लाइन. 1 यूनिट मतलब कभी 4, कभी 4.5, कभी 4.25, कभी 5.5, कभी 6. एंड यहाँ पर कभी 7 यूनिट, कभी 3 यूनिट, कभी 2 यूनिट, कभी 10 यूनिट. That is correlation. Correlation is giving you the strength of the relation and the direction both. Correlation को correlation coefficient भी बोलते हैं, एक ही चीज है. कोरिलेशन में वेट का पंगा नहीं है, बिकॉज वेट वाला चीज यू पुट इट इनसाइड सिग्मा का कैलकुलेशन और कोवेरियंस का कैलकुलेशन. सो व्हेन यू कैलकुलेट कोवेरियंस, ये लिखा चुका है, डिवाइड बाय सिग्मा पी, दैट इज 1. यू डिवाइड दिस कोवेरियंस डिवाइड बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, यू गेट योर कोरिलेशन. एक्सपेक्टेड वाला है तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी एक्सपेक्टेड वाला निकालो, कोवेरियंस भी एक्सपेक्टेड वाला निकालो, तो कोरिलेशन भी एक्सपेक्टेड वाला आ जाएगा. नॉट एन इशू. बोलो, फॉलोइंग. सो दिस चैप्टर का फर्स्ट एंड द लास्ट हाफ इज डन. बीच का मैंने कुछ पोर्शन कराया खाली. आज स्टार्टेड विद द कोवेरियंस कोरिलेशन पार्ट. द पोर्टफोलियो एस्पेक्ट विल कंप्लीट नेक्स्ट वीक एंड वील स्टार्ट उसके बाद प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट. एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू आर एक्सपेक्टेड नॉट टू बी मिसिंग क्लासेस, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन